بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ بایولوجی چیپٹر 4 ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نیوکلس، اور نیوکلس کا یہ لاسٹ پورشن ہے کروموسوم کے نام سے. تو ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں کروموسوم. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم اس کے نام کو دیکھیں گے کہ کروموسوم کا نام کس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے. دو ورڈز کا کمبینیشن ہے، کرومو وچ مین کلرڈ، رنگدار، اور دوسرا سوم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے باڈی. کروموسوم یعنی کلرڈ باڈی، یعنی رنگدار سٹرکچر کہہ سکتے ہیں، رنگدار چیزیں کہہ سکتے ہیں. اگر ہم ایک نان ڈیوائڈنگ سیل کی بات کریں، جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈائیگرام میں اویلیبل ہے، تو اس نان ڈیوائڈنگ سٹیج پر سیل کے اندر کیا ہے، نیوکلیس سینٹر میں موجود ہے. نیوکلیس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے باریک دھاگے ہیں جن کو کرومیٹن مٹیریل کہا گیا ہے، اور پھر اس کے سینٹر میں نیوکلیولس بھی موجود ہے. جینیٹک مٹیریل جو کہ کرومیٹن مٹیریل کی صورت میں موجود ہوتا ہے، ایکچولی اس کی کمپوزیشن دیکھی جائے تو یہ ڈی این اے اور پروٹین کا کمبینیشن ہوتا ہے. دو چیزیں اس کی فارمیشن کر رہی ہوتی ہیں. ڈی این اے کی فل فارم ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. اگر فل فارم کا اینڈ والا پارٹ دیکھیں تو ایسڈ کا ورڈ آ رہا ہے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرومیٹن مٹیریل میں موجود جو ڈی این اے ہے یہ ایسڈک نیچر رکھتا ہے. جب بھی ہم جینیٹک مٹیریل جو کہ کرومیٹن مٹیریل کی فارم میں یا پھر کروموسوم کی فارم میں سیل کے اندر موجود ہے، اس کو دیکھنے، اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس کو رنگ کرتے ہیں. رنگ کے لیے ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے ڈائی، یعنی ہم اس کو ڈائی کرتے ہیں. اور ڈائی ہم ہمیشہ بیسک یوز کرتے ہیں، ایسی ڈائی جس کی پی ایچ بیسک ہو یعنی وہ اساسیت رکھتی ہو، اساس ہو، اس کو ہم یوز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو جینیٹک مٹیریل کروموسوم کی صورت میں ہم نے آبزرو کرنا ہے، یا جو جینیٹک مٹیریل کرومیٹن مٹیریل کی فارم میں جس کو ہم نے آبزرو کرنا ہے، اس میں ڈی این اے ہے، ڈی این اے ایسڈک نیچر رکھتے ہیں. جو بھی بیسک ڈائی ہم یوز کریں گے وہ اس ایسڈک نیچر والے ڈی این اے کے ساتھ اٹیچ ہوگی، اٹریکشن کی وجہ سے آپس میں لنکڈ ہوں گے، اور اس طرح کیا ہے، جینیٹک مٹیریل کرومیٹن مٹیریل کی فارم میں یا کروموسوم کی فارم میں جو سیل کے اندر ہوگا وہ کلرڈ ہو جائے گا. اور ہم اس کلرڈ جینیٹک مٹیریل کروموسوم کو، کرومیٹن مٹیریل کو ایزیلی آبزرو کر سکیں گے مائکروسکوپ کے نیچے. تو اس لیے کیونکہ یہ رنگدار ہوتا ہے مائکروسکوپ کے نیچے نظر آنے پر، اسی لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے کروموسوم، اور پلورل ہے تو اس لحاظ سے ایس بھی ساتھ لگایا گیا ہے، یعنی کروموسومز. اب آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف. کروموسومز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے ہم ان دو ڈائیگرامز کو کمپیئر کریں گے. یہ ڈائیگرام ہے نان ڈیوائڈنگ سیل کی، جس میں نیوکلیس نظر آ رہا ہے. نیوکلیس کے اندر یہ چھوٹے باریک رنگدار دھاگے کرومیٹن مٹیریل کی فارم میں نظر آ رہے ہیں. جب یہی سیل نان ڈیوائڈنگ یعنی جب یہ ڈیوائڈ نہیں کر رہا، اس سٹیج سے ڈیوائڈنگ سٹیج کی طرف بڑھتا ہے اور یہ ڈیوائڈ ہونے لگتا ہے، تو اس میں موجود نیوکلیس ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. نیوکلیس ڈس اپیئر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے باریک رنگدار دھاگے جن کو ہم کرومیٹن مٹیریل کا نام دے رہے تھے، یہ باریک رنگدار دھاگے چینج ہو جاتے ہیں، کنڈینس ہو جاتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، جڑتے ہیں، اور جڑ کے موٹے رنگدار دھاگے بناتے ہیں. جب بھی ایسا ہوگا، سیل نان ڈیوائڈنگ سے ڈیوائڈنگ سٹیج یعنی جب ڈیوائڈ ہونا سٹارٹ ہوگا، جب سٹارٹ ہوگی ڈویژن سیل کے اندر، تو کیا ہوگا، یہ چھوٹے باریک رنگدار دھاگے کرومیٹن مٹیریل کی فارم میں یہ کنڈینس ہوں گے، آپس میں جڑیں گے، اور جڑ کے بڑے موٹے رنگدار دھاگے بنائیں گے. ہے یہ بھی کرومیٹن مٹیریل جو کہ جینیٹک مٹیریل کی فارم میں، یہ بھی جینیٹک مٹیریل، لیکن فرق کیا ہے، جب سیل ڈیوائڈ کرنے لگتا ہے تو یہ کرومیٹن مٹیریل، یہ باریک رنگدار دھاگے موٹے رنگدار دھاگوں کی صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یہ موٹے رنگدار دھاگے، ان کو ہم نام دیتے ہیں کروموسومز کا. یعنی ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائڈنگ سیل میں کیا ہوگا، نان ڈیوائڈنگ سیل کا جو کرومیٹن مٹیریل ہے، ڈیوائڈنگ سٹیج پر اسی سیل میں وہ کیا ہے، کروموسوم کی فارم میں چینج ہو جاتا ہے، موٹے رنگدار دھاگوں کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ موٹے رنگدار دھاگے ڈیوائڈنگ سیل کے اندر جو کہ ایکچولی جینیٹک مٹیریل کی فارم میں ہیں، ان کو ہم کروموسومز کا نام دیتے ہیں. تو یہی ڈیفینیشن ہم یہاں پہ آبزرو کریں گے. ڈیورنگ سیل ڈویژن، جب سیل ڈیوائڈ ہونے لگتا ہے،
क्रोमेटिन मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमेटिन मटेरियल है यानी वो छोटे जो बारीक धागे हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी गहरे रंग वाले धागानुमा स्ट्रक्चर्स में। तो क्रोमेटिन मटेरियल गहरे रंगदार धागानुमा स्ट्रक्चर में जब चेंज हो जाता है तो ये गहरे रंगदार मोटे धागे जो है जो क्रोमेटिन मटेरियल से बनते हैं उनको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। दे आर नोन एज क्रोमोसोम। न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड। स्टेन का मतलब होता है रंग देना, डाई करना, उसको कलर करना, और इसकी वजह हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं मजीद इस सेंटेंस के साथ। न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाई बिकॉज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। यानी न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करने से पहले क्या है, बेसिक डाई के साथ कलर किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है। और बेसिक डाई यूज करने की वजह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए होते हैं, डीएनए की नीचे एसिडिक है, और एसिडिक नेचर होने की वजह से हम क्या है बेसिक डाई यूज करती हैं। दोनों की अट्रैक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लिंक बनाती है, और जो मटीरियल है जेनेटिक मटीरियल क्रोमेटिन मटीरियल की फॉर्म में वो हमें कलर्ड नजर आता है न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की कि क्रोमोसोम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। लेकिन उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज क्लियर करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है सेल को कि सेल जो है इन छोटे बारीक धागों को इन मोटे बारीक धागों में कन्वर्ट करे। असल में होना ये है कि सेल ने तकसीम होना है, अपने जैसा एक और सेल बनाना है, अपने जैसी एक और कॉपी तैयार करनी है। यानी ये सेल इस तरह आधा होके 2 सेल में तब्दील हो जाएगा। जब ये 2 सेल में तब्दील होगा तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक मटेरियल इस सेल के अंदर मौजूद है उसकी भी कॉपी तैयार होगी, और वो भी एक कॉपी एक सेल में चली जाएगी, दूसरी कॉपी दूसरे सेल में चली जाएगी। अब सेल यहाँ पे ये चाहता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में है वो दोनों सेल्स के अंदर सेफली ट्रांसफर हो। इस सेफ ट्रांसफर के लिए क्या है सेल पैकिंग करेगा। ये जो बारीक बिखरे हुए धागे हैं क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में उनको कंडेंसेशन के नतीजे में अच्छी तरह पैक करेगा। पैकिंग के बाद क्या है सेफली इनको दोनों सेल में इक्वली ट्रांसफर किया जा सकेगा। इससे क्या होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो सही तरीके से सेफली ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे हम घर में या रूम में मौजूद होते हैं तो हमारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे मौजूद होती हैं। जूते कहीं पड़े होते हैं, अलग हमने जोड़ के रखे होते हैं, कपड़े अलग जोड़ के रखे होते हैं, और बाकी चीज़ें बुक्स वगैरह हमने अलग। लेकिन अगर हम कहीं सफ़र पर जाने लगते हैं तो हम पैकिंग करते हैं, 1 या 2 बैग में हम अपनी वही चीज़ें कपड़े जूते बुक्स वगैरह उठा के वही 1 या 2 बैग में पैक करते हैं अच्छी तरह, ताकि हमारे लिए उनको ट्रांसफ़र करना एक से दूसरी जगह ले जाना आसान हो। तो सेफ ट्रांसपोर्ट जो है वो तभी मुमकिन हो पाती है जब हम क्या करते हैं अच्छे तरीके से पैकेजिंग करते हैं। पैकिंग सही होगी और पैकिंग होगी तो क्या होगा मटेरियल सेफली ट्रांसफर भी होता है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, क्रोमेटिन मटेरियल जो कि बिखरा हुआ था वो क्या है यहाँ पे कंडेंस करके उसको पैक किया जाता है ताकि 2 सेल जो नए बनेंगे उनमें क्या है सेफली जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जा सके, क्रोमेटिन मटेरियल को ट्रांसफर किया जा सके, और इस तरह मालूमात जो है वो दोनों सेल्स तक पहुँच सकें ताकि सेल्स जो है वो अपनी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है उनको कंटिन्यू रख सकें। वापस आते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स के एतबार से हम देखेंगे कि क्रोमोसोम में कितने और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे एक क्रोमोसोम की डायग्राम है। ऊपर वाला हिस्सा ये एक हिस्सा और ये दूसरा नीचे वाला, इनको बोला जाता है आर्म्स, बाजू। बाजू हैं ये क्रोमोसोम के। सेंट्रल पार्ट जिसने इन बाजुओं को इन आर्म्स को जोड़ा हुआ है इसको नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के अंदर मखसूस हिस्से मौजूद होते हैं, प्रोटीन के मखसूस पार्ट्स हैं जिनको नाम दिया जाता है काइनेटोकोर्स, और ये काइनेटोकोर्स क्या करते हैं स्पिंडल फाइबर्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं जब क्रोमोसोम्स ने अपोजिट पोल्स की तरफ जाना होता है सेल डिवीजन के दौरान। आर्म्स, सेंट्रोमियर, आर्म और आर्म्स को जोड़ने वाला ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर मौजूद काइनेटोकोर्स, और काइनेटोकोर जो है ये वो जगह है जहां स्पिंडल फाइबर्स ने आके अटैच होना है। वापस आते हैं जी नॉन डिवाइडिंग स्टेज। डिवाइडिंग स्टेज पर जब सेल डिवाइड होने लगता है तो क्या है, ना सिर्फ सेल क्रोमेटिन मटेरियल को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है बल्कि साथ ही साथ क्या है जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन भी होती है। यानी एक तो कंडेंसेशन के नतीजे में क्रोमोसोम्स बनते हैं, दूसरा ये
कि इस कंडेंसेशन के साथ साथ क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के साथ साथ क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन भी होती है, क्रोमोसोम्स की कॉपीज भी तैयार होती हैं। जैसे अब ये एक क्रोमोसोम बना तो ये अपनी जैसी एक कॉपी भी यहाँ पे तैयार करेगा जो कि सेम सेंट्रोमेयर वाले पार्ट पर अटैच होगी। ये क्रोमोसोम बना क्रोमेटिन मटेरियल से कंडेंसेशन के नतीजे में, तो इसकी भी एक कॉपी भी तैयार होगी। कॉपी के लिए हमारे सिलेबस में वर्ड रेप्लिका यूज हुआ है। तो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, अपनी कॉपी तैयार करेंगे या अपने रेप्लिका तैयार करेंगे। एग्जैक्ट कॉपी जो यहाँ तैयार की गई, इस क्रोमोसोम ने जिसको तैयार किया, ये एग्जैक्ट कॉपी इस क्रोमोसोम ने जो तैयार की, इसको क्रोमेटिड का नाम दिया गया। यहाँ पर अगर हम क्रोमेटिड को देखें तो ये क्रोमोसोम था और इस क्रोमोसोम ने यहाँ पर क्या है, अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार की। ये जिस और एग्जैक्ट कॉपी और एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमेटिड। तो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम अपनी कॉपी तैयार करता है और उस कॉपी को क्रोमेटिड का नाम दिया जाता है। अब अगर इस कॉपी को क्रोमेटिड कहा जा सकता है तो ये भी तो जिसने इसको बनाया वो भी तो बिल्कुल इसी जैसा है, इसको भी क्रोमेटिड कहा जा सकता है। और दोनों में क्योंकि जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल वो सेम है, इसीलिए दोनों के अंदर मटेरियल के सिमिलर होने की वजह से, इंफॉर्मेशन के एक जैसे होने की वजह से दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं। एग्जैक्ट रेप्लिका क्रोमोसोम की, एग्जैक्ट क्रोमोसोम की जो कॉपी है उसको क्रोमेटिड बोलते हैं। और दोनों कॉपीज जो है वो क्योंकि एक जैसी हैं, इंफॉर्मेशन एक जैसी है दोनों के अंदर, इसीलिए क्या है, उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम भी देते हैं। तो क्या होगा, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हुई, इन्होंने अपना रेप्लिका यानी क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन की। रेप्लिका यानी क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, सेंट्रियोल्स जो कि अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं, सेल डिवाइड होने के करीब है, ये क्या करेंगे, बारीक छोटे छोटे धागे बना के क्रोमोसोम्स की तरफ भेजेंगे। इन धागों को नाम दिया जाता है स्पिंडल्स का। हम यानी कह सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल फाइबर्स कहलाते। और ये स्पिंडल फाइबर्स इन सेंट्रियोल्स में बनाने होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स इन सिस्टर क्रोमेटिड्स पर सेंट्रोमेयर वाली पार्ट पर जहां काइनेटोकोर मौजूद है वहां जाके ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। इधर से यहाँ इस साइड पे आके, दूसरी साइड में भी इधर आके इस सेंट्रोमेयर पर मौजूद काइनेटोकोर वाले पोर्शन पर, सेम इधर भी इस जोड़े पर भी ऐसे ही होगा। दोनों साइडों से स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनके सेंट्रोमेयर वाले पार्ट पर मौजूद काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। दोनों क्या है, एक एक कॉपी को अलग करेंगे, यानी ये वाला क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, ये वाला क्रोमेटिड इस तरफ। इस तरह क्या है, दोनों की इंफॉर्मेशन सेपरेट होने पर, दोनों की कॉपीज और ये क्रोमेटिड सेपरेट होने पर सेल जो है वो ये एक सेल दो सेल्स में चेंज हो जाएगा और हम कहेंगे कि सेल की जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गई। तो इस तरह कंडेंसेशन होती है क्रोमेटिन मटेरियल की, क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम के साथ साथ क्या डुप्लीकेशन होती है, उसकी कॉपी तैयार होती है। कॉपी तैयार होते ही क्या है, ये अलाइन होते हैं सेंटर में, स्पिंडल फाइबर्स आते हैं सेंट्रियोल से, काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं और काइनेटोकोर पर अटैच होते ही क्या है, ये जो कॉपी सी क्रोमेटिड्स की उनको अलग करती हैं, एक कॉपी अपोजिट पोल्स की तरफ जाती है, सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हम वर्ड बाय वर्ड यहाँ इन सेंटेंसेस में देखेंगे। हमारा जो पॉइंट था वो था कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ आर्म्स एंड सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम आर्म्स पर मुश्तमिल होते हैं और साथ ही साथ सेंट्रोमियर पर। जो बाजू हैं उनको आर्म बोलते हैं और जो सेंट्रल पार्ट है जिसने आर्म्स को जोड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज अ प्लेस ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर वो जगह वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमियर यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर हैज अ प्लेस नोन एज काइनेटोकोर वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रोमियर पर वो जगह जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है वहां पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। बहरहाल यहाँ सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है कि सेंट्रोमियर वो जगह है जहाँ पे सेल डिवीजन के दौरान क्या है, स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ two identical chromatids at the beginning of cell division। यानी सेल डिवीजन के स्टार्ट में हर क्रोमोसोम क्या है, दो एक जैसी एग्जैक्ट कॉपीज पर मुश्तमिल होता है। यानी हर क्रोमोसोम के पास अपनी एक कॉपी मौजूद होती है जिसको हम क्रोमेटिड का नाम दे चुके हैं।
जैसा कि ये क्रोमोसोम है तो इसके पास ये इसकी कॉपी, ये इधर क्रोमोसोम है तो इसके पास ये इसकी कॉपी क्रोमेटिड की फॉर्म में। तो यही बात यहाँ पे भी की गई है कि सेल डिवीजन के स्टार्ट में हर क्रोमोसोम के पास एग्जैक्ट उसकी एक कॉपी, उसका एक रेप्लिका क्रोमेटिड की फॉर्म में मौजूद होता है। क्रोमेटिड की डेफिनेशन फर्दर, क्रोमेटिड इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमेटिड क्या है? क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी है। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, और क्रोमोसोम क्या है? क्रोमेटिड क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी है, रेप्लिका है। एंड बोथ अटैच विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, यानी दोनों रेप्लिका, एक क्रोमोसोम और एक क्रोमेटिड, दोनों एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर के जरिए अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपोजिशन का। क्रोमोसोम की कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं? कंपोजिशन के हवाले से दो मेन चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस की जाती हैं। नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन मिल के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं, और यही क्रोमोसोम है जो हेरिडिटी मटीरियल कहलाता है। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले एक पॉइंट मैं मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपने देखा कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो बारीक, छोटे बारीक धागों की सूरत में मौजूद होता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल जुड़ के क्या है? क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम जो है ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए जो है वो क्या है? एक धागा नुमा स्ट्रक्चर है। अगर हम इस क्रोमोसोम को खोलें तो इसमें एक लंबा धागा हमें मिलेगा। इस लंबे धागे को हम डीएनए का नाम देंगे, जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर इस क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर रहा था। अब इस डीएनए के अंदर, इस लंबे धागे के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ये एक सेगमेंट, फिर ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट। ऐसे ढेर सारे सेगमेंट्स मिल के इस डीएनए की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और हर एक सेगमेंट को नाम दिया जाता है जीन। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है? विरासत की इकाई है, और ये जीन्स ही है एक्चुअली जो मिलके डीएनए बनाते हैं। डीएनए प्रोटीन के साथ मिलके क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में भी सेल के अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं। जितनी भी ज़रूरी मालूमात सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए होंगी, वो सारी की सारी जीन्स की सूरत में मौजूद होती हैं। यानी सेल की जितनी भी मालूमात हैं वो जीन्स की सूरत में मौजूद होती हैं, या जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जीन्स की सूरत में मौजूद होती है। और यही जीन्स हैं जो क्या है? इंफॉर्मेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, मालूमात को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते रहते हैं। यही वो ज़रूरी मालूमात हैं जिनकी बेस पे क्या है? सेल अपनी एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करता है, ज़िंदा रहता है, और नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट सेल्स भी प्रोड्यूस करता रहता है। जी, तो कंपोजिशन थी, क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन आप लोगों ने याद रखनी है, वैसे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है फर्स्ट ईयर का, लेकिन हिस्टोन नामी प्रोटीन है जो डीएनए के साथ मिलके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करती है। ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ सेल इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जितनी भी मालूमात जो कि ज़रूरी है सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। वो जीन्स की फॉर्म में क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं। जितनी भी ज़रूरी मालूमात हैं जो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं, वो जीन्स की सूरत में क्रोमोसोम्स पर मौजूद होती हैं, विच आर ट्रांसफर्ड फ्राम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यानी हम जीन्स की बात करें कि ये सारी की सारी मालूमात क्रोमोसोम पर जीन्स की फॉर्म में मौजूद होती है, और ये मालूमात जीन्स की फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मुंतकिल की जाती हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की तादाद को डिस्कस किया गया। जनरेशन ओवर जनरेशन, एक स्पीशीज की बात करें, नस्ल दर नस्ल एक स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। हर स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर स्पेसिफिक है। हाँ, अगर मुख्तलिफ स्पीशीज में देखें तो हर स्पीशी का अपना मखसूस क्रोमोसोम नंबर, स्पीशी टू स्पीशी क्रोमोसोम नंबर वेरी करता है, लेकिन एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। जैसे ह्यूमंस हैं तो सभी इंसानों के अंदर क्रोमोसोम की तादाद
एक ही होगी, यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरी स्पीशीज, हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो मुख्तलिफ होंगे, उनकी एक मखसूस तादाद होगी जो कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होगी। इवन नस्ल दर नस्ल ये तादाद जो है वो मखसूस रहती है। जैसे इंसान है, जितनी मर्जी नस्ल आगे बढ़ेगी, जितने मर्जी आगे इंसान और वजूद में आएंगे, या जितने भी पहले आ चुके सब के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46, यानी सिंपली हम कह सकते हैं स्पीशी टू स्पीशी क्रोमोसोम की तादाद वेरी करती है, लेकिन एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स के अंदर क्रोमोसोम जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी स्पीशी टू स्पीशी, यानी स्पीशी टू स्पीशी क्या है, मुख्तलिफ स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज होता रहता है, हर एक का अपना मखसूस क्रोमोसोम नंबर है, बट रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी, यानी एक स्पीशी के इंडिविजुअल में और इवन नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहते हैं एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स के अंदर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद है वो यहाँ हमारे सिलेबस के अंदर कुछ दी गई थी, उनमें से कुछ हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि ह्यूमंस में, ह्यूमन नामी स्पीशी में, इंसानों में, इंसानी जिस्म के हर सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। चिंपैंजी के जिस्म में हर सेल के अंदर 48, अनियन यानी प्याज 16 क्रोमोसोम पर सेल, पोटैटो 48 क्रोमोसोम पर सेल, फ्रॉग 26 क्रोमोसोम पर सेल, फ्रूट फ्लाई जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी कहा जाता है, नॉर्मली पके हुए फलों पर आने वाली ये मक्खी है, गर्मियों में ज़्यादातर ऑब्जर्व की जाती है, इसमें इसके हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद 8। गार्डन पी यानी मटर के बीज में या मटर के हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद 14 है। तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं और हर स्पीशी का जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिफर कर रहा है। हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, अगर आप गौर करें तो चिंपैंजी और दूसरे नंबर पे पोटैटो, दोनों में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कि हम तो पहले कह चुके हैं कि जी स्पीशी टू स्पीशी ये वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे क्या मसला, क्रोमोसोम नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर हम गौर करें तो हम ये पहले कह चुके हैं कि जीन्स मिलके डीएनए बनाते हैं, डीएनए मिलके क्या कर रहा है, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन का। तो क्रोमोसोम नंबर दोनों का सेम है, लेकिन अगर हम फर्दर माइक्रोस्कोपिकली जीन्स की तादाद को मेजर करेंगे तो चिंपैंजी और पोटैटो में जीन्स की तादाद वो मुख्तलिफ होगी, फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मौजूद होगी वो मुख्तलिफ होगी। तो एक्सेप्शनल केस है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन उसके बावजूद क्या होगा कि जीन्स की तादाद वो मुख्तलिफ होगी, इवन जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपनी अपनी स्पीशी के एतबार से इनके जीन्स में मौजूद होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लास्ट, इसमें हमने बात करनी है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है। आपने गौर किया होगा कि जब भी फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या होगा, मदर साइड से क्या होता है, एग सेल आता है, और फादर साइड से क्या है, स्पर्म आता है। एग में 23 क्रोमोसोम, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं। एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। ये एक सेल बनेगा जो एग और स्पर्म के कॉम्बिनेशन से बना, इसको जाइगोट कहा जाता है। इस जाइगोट में एग से आने वाले 23 क्रोमोसोम भी मौजूद होंगे, स्पर्म से आने वाले 23 क्रोमोसोम भी मौजूद होंगे। हम अगर गौर करें तो 23 इधर से आ रहे थे, 23 इधर से आ रहे थे, मिलके इन्होंने क्या है 40 क्रोमोसोम वाला जाइगोट सेल बनाया। जब भी 23 क्रोमोसोम इंसानी केस में, इंसानी सेल के केस में हम बात कर रहे हूं, तो एक साइड से आने वाले सेल्स क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक सेट जो है वो मदर साइड से आता है क्रोमोसोम का, और दूसरा सेट जो है वो फादर साइड से क्रोमोसोम्स का आता है स्पर्म की सूरत में। और ये दो सेट मिल के इस जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं।
और जाइगोट क्या है, ये डबल सेट, इसके पास 2 सेट हैं क्रोमोसोम के। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम वापस आएंगे और हम 2 टर्म्स यहां पे डिस्कस करेंगे, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। ऐसे सेल जिनमें क्रोमोसोम का एक सेट मौजूद हो। इंसानी सेल्स के केस में एक सेट से मुराद 23 क्रोमोसोम, यानी स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम है तो एक सेट कहलाएगा। तो ऐसे सेल जिनके पास, या एग की बात करें तो इसके पास भी 23 हैं, एक सेट है। ऐसे सेल जिनके पास एक सेट हो क्रोमोसोम का, उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, 1n बोला जाता है। एग सेल, स्पर्म सेल एक एक सेट है, इसलिए हम इनको बोलते हैं दे आर हैप्लॉइड सेल। इनको जर्म सेल्स भी बोला जाता है, इनको गैमीट सेल्स भी बोलते हैं। किसी भी जानदार के अंदर जर्म सेल्स या गैमीट सेल्स जो होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ होता है, यानी उनमें क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है, यानी वो क्या है, हैप्लॉइड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसी के अपोजिट अगर हम देखें तो ऐसे सेल्स भी मौजूद हैं बॉडी में जो स्पर्म और एग के अलावा बाकी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। वो सारे सेल जो स्पर्म और एग के अलावा बाकी बॉडी की फॉर्मेशन करें, बाकी बॉडी को मेंटेन करें, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉडी सेल्स, उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, एंड दे आर डिप्लॉयड सेल्स। और इनमें क्या होता है, 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के। इनमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, और ऐसा कोई भी सेल जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट हों उनको हम डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। जैसे ये हैप्लॉइड सेल, ये हैप्लॉइड सेल, ये 2 जोड़े आ गए, 2 सेट आ गए क्रोमोसोम के, इसलिए ये जाइगोट क्या है, ये 2n यानी डिप्लॉयड सेल बनेगा। तो बॉडी में स्पर्म और एग जो है, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म और एग दोनों क्या हैं, दे आर हैप्लॉइड, दे हैव 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, दे आर 1n सेल। और बाकी बॉडी सेल, इनके अलावा जितनी भी बॉडी की फॉर्मेशन करने वाले सेल्स हैं वो 2n हैं, वो डिप्लॉयड है, उनके पास क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, एक सेट मदर साइड से आता है एक सेट, और दूसरा सेट जो फादर साइड से आता है। तो इसी चीज को यहाँ पे देखा गया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल बॉडी सेल। और नॉर्मल बॉडी सेल से मुराद, हम सोमैटिक सेल्स की बात करें, नॉर्मल बॉडी सेल से मुराद ऐसे सेल जो स्पर्म और एग के अलावा बाकी बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल बॉडी सेल इज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल बॉडी सेल इज डिप्लॉयड। नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर जो है क्रोमोसोम का नंबर वो डिप्लॉयड है, 2n है, यानी हर सेल के अंदर 2 सेट होंगे क्रोमोसोम के। वेयर एज हैप्लॉइड सेल इन जर्म्स, हैप्लॉइड इन जर्म सेल्स, यानी जो जर्म सेल्स हैं उनमें क्या होगा, एक सेट होगा, यानी जर्म सेल्स क्या है, वो हैप्लॉइड होंगे। जैसा कि ह्यूमन सेल, ह्यूमन स्पर्म एंड एग सेल्स, ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, ये जर्म सेल हैं, ये हैप्लॉइड हैं, और इनमें क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है, यानी 23 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। वाइल दोज ऑफ ड्रोसोफिला, यानी वही जर्म सेल अगर हम ड्रोसोफिला में देखें, फ्रूट फ्लाई में देखें, तो कितने होंगे, एक सेट के एतबार से 4 क्रोमोसोम उनमें ऑब्जर्व किए जाएंगे। ड्रोसोफिला में नॉर्मली उसके डिप्लॉयड बॉडी सेल्स में, ड्रोसोफिला के सेल्स में, डिप्लॉयड सेल में 8 क्रोमोसोम, जबकि अगर हम स्पर्म सेल की बात करें, जर्म सेल्स की बात करें, गैमेट सेल्स की बात करें, तो ड्रोसोफिला में एक सेट जो है वो 4 क्रोमोसोम का होगा। तो हम सिंपली जितने भी क्रोमोसोम नंबर हमने यहाँ पे देखे हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से फॉर एग्जांपल चिंपैंजी कि इसके एक गैमीट में कितने क्रोमोसोम, तो हम इस मेन डिप्लॉयड सेल वाले क्रोमोसोम की तादाद को हाफ कर देंगे तो वो एक सेट, और वो गैमीट्स का, वो स्पर्म या एग का क्रोमोसोम नंबर बनेगा। ह्यूमन नॉर्मल बॉडी सेल में 46 हैं, तो स्पर्म में या फिर एग में क्या है, 23 हो जाएंगे, क्योंकि एक सेट होगा। इसी तरह फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला में डिप्लॉयड सेल में 8 क्रोमोसोम है, और अगर हैप्लॉइड सेल यानी जर्म सेल, गैमीट और स्पर्म सेल की बात करें, एग सेल की बात करें, तो एक सेट जो है वो 4 का होगा, 4 क्रोमोसोम उसमें होंगे। तो इस तरह डिप्लॉयड और हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में एक सेट क्रोमोसोम का हाफ नंबर, और डिप्लॉयड में डबल, उसी हाफ की एक और कॉपी यानी डिप्लॉयड हो जाएंगे, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए जाएंगे। तो ये था हमारा क्रोमोसोम से रिलेटेड टॉपिक, जिसको कोशिश की मैंने कि आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। हमारा आखिरी हिस्सा जो हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं टॉपिक से रिलेट करने वाला, वो है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस आप लोगों ने, पहली बात, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हर स्पीशीज के, ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी याद करने हैं।
بار بار یہ پوچھے جانے والے کویشچن ہیں, بار بار ان کی تعداد پوچھی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ اسٹرکچر آف کروموسوم, اس میں اسپیشلی کرومیٹڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے, کروموسوم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. کروموسوم اور کرومیٹن اور کرومیٹڈ یہ ایسے پوائنٹس ہیں جو ایز اے شارٹ کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. تو پاسبل کویشچنز جو تھے وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے. ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے یہ ٹاپک, جبکہ شارٹ میں یہ کروموسوم, کرومیٹن اور کرومیٹڈ, ساتھ ہی ساتھ یہ نمبر آف کروموسوم, یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے. تو ہوپ کہ کلیئر ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.